हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा. Good afternoon, sir. Okay, so today standard 11 chapter number 2 and lecture number 6 or 5th. 6, I think so. Okay, what we have done in previous lecture, tell me. चलो बताओ, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? याद है कुछ या फिर भूल गए? Plane angle. तो बताओ. चलो, प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? मंथन तुम बताओ, इसरा तुम भी बताओ. सर plane angle वाला किया था. प्लेनेट पे अर्थों की डिस्टेंस फाइंड करवाનું એક કીધું. यस, करेक्ट. और फिर और कुछ कि नहीं, इतना ही सिर्फ? यस सर, इतना. उसमें कोई डाउट क्वेरी वगैरह कुछ हो तो बताओ. नहीं है सर. तीसरा, तुम्हें कोई बेटा डाउट नहीं सर. नहीं है ना? नहीं. चलो, तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वीडियो का ऑडियो नहीं है. ठीक है, अच्छा वीडियो है, 3 डायमेंशन में है, तो शायद आपको स्टेलर मेथड और पैरेलैक्स मेथड वो समझने में बहुत अच्छा रहेगा, इजी रहेगा. प्रॉपरली तो हमने समझ लिया कि चलो कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई भी यहाँ से प्लेनेट, उसका डायमीटर या फिर फ्रॉम अर्थ टू एनी प्लेनेट द डिस्टेंस हम हमारे नेकेड आई से हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ बैठे बैठे वो फिजिक्स में पॉसिबल है. तो हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए एक 3D वीडियो है मेरे पास, लेकिन ऑडियो नहीं है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ. फॉर वेट फॉर दैट, लेट्स आई से. Okay, is it visible? Yes. यस. Okay, so let's start it. मैं थोड़ा कुछ एक्सप्लेन तो करता जाऊंगा साथ, ताकि आपको अच्छा रहे. Stellar parallax. To understand stellar parallax and its uses, parallax is the phenomena in which an object undergoes an apparent shift against background due to the change in the observer's position. देखो बेटा, दोनों में यहाँ पे लेट्स गो बैक, क्या कर रहा है इसमें? यहाँ पे देखो बेटा, एक बंदा शूट आउट कुछ कर रहा है, और शूट आउट होने से ये वो लेफ्ट आई से देखे या फिर राइट आई से देखे, तो आपको दोनों साइड से आपको डिफरेंट दिखा देगा. ये कहने कि चलो भाई सेम दिखा देखा. ठीक है, तो उसके लिए चलो कैसे होता है. सो सी, there are one heavily body means star and 2 observers are at a earth, can measure at the same time. देखो at the same position में दिख रहे हैं. See, different name is given. View from earth, nearly star and background galaxies are there, and measuring from the another end at the same time. So there will be background में there will be different. First में background में E दिख रहा था and अब H दिख रहा है. So likewise this, see, from the earth we can see easily earth is revolving around the sun, and at one position we are seeing a star, and we know the diameter over earth, and we can calculate the distance between the earth and that sun, and this is the baseline. And after 6 months, earth will be reached to the another side revolution में. At the time same find out. So the figure is like should be this. AB is the baseline, यानी कि
arc, and capital D is the distance between the sun and earth, that is a radius, and the between that angle is theta, and the half angle is theta by 2, that is the parallax angle. See, if we draw like a circle this, and sun is at center, then AB, capital AB means small b, that is the arc we are measuring in radian. Okay, so our equation will be there. We can obtain simply theta equal to arc by radius, and from that we obtain this equation. Simple. So remember, D is equal to B by theta, or we can say theta equal to arc by radius. So we can measure the distance between sun and our earth from a simple method. And if you want to calculate the diameter of any planet or sun, similarly, angle is subtended at earth is alpha, and the distance between the sun and the earth is capital D. So similarly, we can obtain D prime, yani ki the diameter of the planet, or we can say also small d is there. So from this method, first thing, parallax observe the case, heavily bodies mean star and so many things, and largest distance from our earth. Second thing, it is used for to finding large distance between the heavily body and also calculating their diameters. Diameters we हम calculate कर सकते हैं. So this was our stellar parallax method. यानी कि अर्थ से बहुत ही दूर पर हो तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं. चलो, क्लियर इतना बेटा? यस सर. पक्का ना? Sorry, it was the disturbance. अब एक वीडियो और है, पैरेलैक्स मेथड क्या है इन शॉर्ट. ठीक है, हमने स्टेलर पैरेलैक्स देख लेंगे. चलो बस स्टेलर कैसे, इन एक्चुअल पैरेलैक्स मेथड क्या है, तो उसके लिए चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Okay, I think it is visible to you. Am I right? यस सर. Okay, so let's start it. ध्यान से देखिएगा बेटा. To understand the phenomena of parallax phenomena क्या है? To study the factors affecting it. See, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने टॉपिक करवाया था तब मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि हम हमारे नेकेड आई से हमारे घर में रही ट्यूबलाइट को देखें, वन बाय वन एक आई को ओपन रखो, एक को क्लोज रखो और देखो, तब आपको जो पोजीशन दिख रही है और बाद में आप चेंज कर दो तो पोजीशन कैसे चेंज होता है. सिंपली वो पैरेलैक्स मेथड है. तो यहाँ 3 डायमेंशन में उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, देखते रहिएगा बेटा. देखो, कोई यहाँ से दिख रहा है तो उसको देखो, कोई एक लाइट दिख रही है और व्यूअर 2 इज सीइंग फ्रॉम अनदर साइड and it is see only road. So if he goes to change the different places, at that time the viewing scene is different. And we see from the exact position. So what happened? So parallax is the defined the appearance of an object against the background due to the change in the observer's position. Observer की position की वजह से change होगा जाएगा. See how it is going to change. This is the baseline.
from where the object is going to see, and candle is the reference from where we are going to see the object. This is the parallax. See, A is going to change. See, there are different distances and we obtain the different parallax distances. चलो ये बंदा शूट आउट करना चाहता है, कुछ सुसाइड करना नहीं चाहता है, डोंट वरी, रुको, भागो मत, रुको रुको रुको। हाँ देखो, बोथ आईज ओपन, सो तो उसको देखो टारगेट क्यू कैसे दिखता है। एंड if we close its left eye, see, target going to shift it, and if it close the right eye, at that time Q or object target is shifted. If we close to both the eyes, then we have to shift one side because of we are targeting, है ना? दोनों आई क्लोज कर देता है तो हमें एक साइड हो जाना पड़ता है। So two eyes are basis, simple. So in short, parallax is the phenomena in which an object undergoes an apparent shift against the background due to the change in the observer's position. Number two, as the distance between the object and the observer increases, the parallax observed decreases. So next topic. So बेटा शायद आपको पैरेलैक्स मेथड समझने में बहुत इजी रहेगा, आपको पता चला इसमें बेटा दोनों वीडियो में? ओके, यस तो सर। ये पैरेलैक्स मेथड और स्टेलर पैरेलैक्स। तो एग्जाम में यदि इसके रिलेटेड कोई भी सम्स वगैरह कुछ भी आए तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक लेक्चर में डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैंने आपको सिखाया था। तो इसके रिगार्डिंग चलो टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हुए एग्जांपल से, यानी कि उसको हम इल्यूस्ट्रेशन बोलेंगे, याद रखना, जो सॉल्व किए हुए ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दी गए हैं उसको हम इल्यूस्ट्रेशन बोलेंगे, एग्जांपल से है। तो चलो हम क्वेश्चन में शेयर कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक से, और वेट फॉर दैट आई हैव टू ओपन अप टेक्स्ट बुक। यदि मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं आ रही है ना? हेलो, नहीं सर। नहीं आ जाए तो बता देना। चलो let's share a book with you. Okay, now you are seeing the example one, yani illustration one, which is already given, solved in book. So let's read question carefully and we will solve it. Okay. And let's remove unnecessary portion from this screen. So I have to white. See, I remove unnecessary portion. मुझे अच्छा लगता है, देखो रिमूव करने के लिए जितना चाहिए उतना ही मैंने रखा है। अननेसेसरी पोर्शन ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और मैंने एक इसके अगले मेथड लेक्चर में मैंने शायद आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी चलो एग्जांपल फर्स्ट, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। एंगल हमें मेजर करना है 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलो फर्स्ट थिंग, चलो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यू नो दिस, यस और नो?
वेट, मैं थोड़ी जगह चाहिए मुझे, तो इसको मैं स्मॉल स्केल में कर देता हूँ कन्वर्ट। ओके, वेट फॉर दिस। फिर मैं इसके रिलेटेड सम्स थोड़े आपको दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा अपने आप, ठीक है। मेरे पास है कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कर सकते। चलो, नाउ इट इज विजिबल क्लियरली टू एग्जांपल 2.1। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो कैसे करते हैं डिग्री और रेडियन, रिलेशन याद है बेटा? यस और नो? 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, रेडियन, है ना? यानी कि आपको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 3.14 पाई मींस एंड डिवाइड बाय 180। चलो कितना हो जाता है, कैलकुलेट करो। 3.14 डिवाइड बाय 180। कैलकुलेटर अपने पास रखो, मैं नहीं रखता कैलकुलेटर। चलो जल्दी। 1 मिनट सर। चलो निकालो कैलसी। जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर फोर 0.017 और 6/4 2 6। 6/4 ओके, इतना रेडियन मिला बेटा। अब देखो, मैंने शिफ्ट होने के लिए आपको दिखाया था, लेफ्ट साइड शिफ्ट और राइट हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं। चलो 1.72, तो पावर क्या होगा बेटा, डिक्रीज और इंक्रीज? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, यस और नो? देखो प्रीवियस नोटबुक में मैंने लिखा होगा आपको, इफ वी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो पावर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? सर यस। 0.01744 आएगा। 0.00 0.01744। ओके, 1.44 है ना? हाँ ओके, तो 1.74। चलो, अब पावर क्या हो जाएगा, 10 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहे हैं तो पावर डिक्रीज होगा कितना, तो 2। 0 पावर तो ऑलरेडी था, तो यानी कि 10⁻⁻² रेडियन। चलो क्लियर इतना? यस सर। ऐसे कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन एक छोटी सी कैलकुलेशन छोटे बच्चे समझकर ये पूछा गया है, ठीक है। सो फर्स्ट वन, सी इट इज ऑलरेडी सॉल्व बट वी ऑब्टेन इट। चलो क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मिनट है ना, यानी कि मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिनट, उसको आपको सॉल्व करना है। यानी कि 1 मिनट को आपको, सॉरी 1 डिग्री को नहीं, 1 मिनट को आपको करना है कन्वर्ट रेडियन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, चलो बताओ। मिनट को पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, यस और नो? हेलो? तो आपको रिलेशन तो याद ही होगा कि भूल गए हो पहले? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यस और नो? यस सर। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। चलो ठीक है। तो चलो मैंने एक ग्राफ बताया कि 1 डिग्री है यहाँ पे, देखो तो 1 डिग्री को पहले हम कन्वर्ट करते हैं 1/60। तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, डिग्री में? यस सर। यस और नो? अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/60 एज इट इज, π/180, so it is converted into radian। चलो ठीक है। यस।
ये हमें इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ओके, यस अब आप कैलकुलेट कर सकते हो पाई यानी कि 3.14 डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 180, सो इक्वल टू, नाउ टेल मी, चलो बताओ। साजन की घर आए, साजन की घर आए, 9.42. सॉरी 9.42. होता है 3.40 डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 180 करो। आप ऐसा मत करना कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर में आप ऐसा करना, पहले 3.14 करो डिवाइड बाय 60 करो, अब जो आंसर मिले उसको डिवाइड 180 करो, तो ही सही आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना आप यदि ऐसा करोगे कि 3.14 डिवाइड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 180, तो आपको आंसर रॉन्ग आएगा। 9 पॉइंट आपने बताया ना वो आएगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। चलो फिर से करो कैलकुलेशन, मुझे पता था। 0.000290 1 मिनट, फिर से बोलो। 0.00290 चलो लिख रहा हूँ, 0 पॉइंट कितने जीरो है अब? 30 30, फिर 290 290। इस तरह तुम्हें इतना इतना आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। हाँ, तो कहाँ मिस्टेक की थी? आपने मैंने बताया वही है ना, 3.14 डिवाइड बाय 60, फिर मल्टीप्लाई कर दिया होगा। कैलकुलेटर में याद रखना, जो भी डिनोमीटर में दिया तो हर बार आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का सिंबल ही यूज करना है, तो भी प्रॉपर मिलेगा। यानी कि दिस आंसर इज इक्वल टू, चलो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए, सो 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। चलो ठीक है, इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 1, यानी कि आंसर क्या मिला? 2.9 इंटू 10⁻⁴। देखो मिल रहा है, यस और नो? सेकंड, यस। ओके, लेट्स गो फॉर थर्ड। 1 आर्क या फिर 1 सेकेंड, उसको कन्वर्ट करो। चलो, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है? 1 सेकेंड को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए 1 सेकंड को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? मिनट में। मिनट में, यस। सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60, या फिर मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो फिर 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। चलो ठीक है, यस अब मिनट को इसमें हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? डिग्री में। डिग्री, यस। सो फिर से डिवाइड बाय 60 करो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री डिग्री में। में। अब इसको हमें कन्वर्ट कहाँ पे करना होगा? रेडियन में, यस और नो? यस। सो 1 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, तो इतना हो जाता है ना, एंड मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन, यस और नो? यस। सो चलो इस सब का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, सो लेट्स यूज इट। सो वी ऑब्टेन 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई, यानी कि 3.14 डिवाइड बाय 3600 एंड 180। चलो अब कैलकुलेट करके बताओ। 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू, टन 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 टन। चलो जल्दी जल्दी। सर 0 0.0000484। कितने जीरो लगाए तुमने? 0.1 5 5 2 3 4 5, फिर
484 484। चलो हमें कितने डेसिमल शिफ्ट होना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4.84 इंटू 10⁻⁻6 -6। रेडियन, है ना? यस सर। देखो, so now we obtain this value, see, okay, got it, third one। यस सर। ऐसे सॉल्व किया जाता है। यस। चलो इनमें कोई डाउट? नो। नो। एग्जाम में से सॉल्व करना नहीं पूछा जाता, लेकिन जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको सीक्वेंस याद रखनी होगी। आपको ये सीक्वेंस याद रखनी होगी कि कोई भी सम्स आ जाए, लेट्स डिस्प्ले वाइट स्क्रीन, कोई भी आए तो आपको ये सिर्फ याद रखना है कि सम सॉल्व करने के लिए यदि सेकंड में हो तो सेकंड को पहले आपको कन्वर्ट करना होगा मिनट में, ठीक है? और मिनट को आपको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। डिग्री में, एंड डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन, ऐसे सीक्वेंस। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सिंपल, आपको पता है 1/60, यस और नो? तो आपको कुछ मिलेगा, यानी कि 1/60 मिनट। चलो क्लियर? यस सर। फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए 1/60 ऑलरेडी था, एंड फिर से /60 करो, सो यू ऑब्टेन इन डिग्री, यस और नो? फिर आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइड बाय एंड पाई बाय 180, सो यू ऑब्टेन इन रेडियन। चलो ठीक है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो कैसी रहेगी? सीक्वेंस कैसे रहेगी बोलो? पहले कहां पे होता है? सेकंड में, सेकंड में, ठीक है, n सेकंड, या फिर सेकंड ही रखो। फिर कन्वर्ट करना होगा मिनट में, फिर कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, और फिर कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, ठीक है? कोई भी सीक्वेंस हो तो आपको इस सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होगा, बाद में आपको फाइनली आंसर मिलेगा, यानी कि फर्स्ट इज सेकंड, सेकंड कन्वर्टेड इनटू मिनट, कि टाइम नहीं है वो तो पता है ना बेटा, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन। चलो क्लियर? यस सर। ओके, ये याद रखेगा, ये सीक्वेंस मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन की थी, फिर से मैंने एक्सप्लेन की। चलो, तो लेट्स स्टॉप here and let's see one more example. Let's say share a textbook with you. Okay, now दिख रहा है बेटा कुछ? नो सर। ओके, नाउ ये यस सर दिखा। ओके, चलो कोई बात नहीं। Okay, let's first of all clear the extra portion. देखो ये थोड़े सम सॉल्व किए हुए हैं, पहले मैं वो करवा दे रहा हूँ, बाद में अपने आप के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए थोड़े आपको दूंगा कर से। Okay, so this is the example number 3, यानी कि illustration. Okay, let's read a question. The moon is observed from 2 diametrically number 3
the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on earth. यानी कि चलो suppose this is the our earth and two diametrical points यानी कि A and B. Suppose here A and here B, and we are observing a moon that is M यानी कि P. प्लेनेट भी बोल सकते हैं मून को. We are observing diametrically. See, okay. चलो इतना क्लियर. Yes, sir. And the angle theta subtended at the moon. मून पे एंगल सबटेंड हो रहा है. देखो अर्थ पे नहीं किया, क्वेश्चन रीड करना. Is theta at the moon by the two directions of observation is 1 degree and 54 minutes. यानी कि theta is given 1 degree and 54 minutes. वन डिग्री एंड 54 मिनट. देखो अब तक जितने हमने किए तो या तो डिग्री में था या फिर मिनट में या फिर सेकंड में था. यहाँ पे एंगल देखो डिग्री एंड थीटा. कोई बात नहीं, कई बार आपने बाजार से कोई चीज खरीदी तो कई बार ऐसे प्राइस होते हैं कि चलो 250 रुपीज, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 250 रुपीज एंड 30 पैसा. यस और नो? है ना. कई बार ऐसे ऊपर पैसे भी होते हैं. बाजार से हम कुछ खरीदे तो कई बार डेसिमल में होता है और कई बार पॉइंट्स में होते हैं. कई बार हम बाजार से लाए तो हम पूछते कितने पैसे, तो वो बोलते हैं कि चलो भाई मेडिकल में से कोई दवा ला तो उसमें बोलते हैं कि चलो भाई कितने हुए, तो वो बोलते हैं चलो 88 रुपीज. और कई बार उसमें डिस्काउंट डाल देते, वो बोलते हैं चलो भाई 82 रुपीज एंड 30 पैसे. ये सब नो. और डिमांड वगैरह कुछ स्टोर में जाओ तो आपको पीछे की डिजिट कुछ मिलेगी. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उसको एक डिजिट में कन्वर्ट कर देना पड़ता है. यस और नो? यस सर. ओके, तो देखो पूरा का पूरा वी हैव टू कन्वर्टेड इनटू डिग्री. यस और नो? इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिग्री में. और उस डिग्री को बाद में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. यस और नो? Yes. है ना. ये दो प्रोसेस करनी पड़ेगी. चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आगे बढ़ो. गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ to be about 1.276 into 10 raised to 7 meter. यानी कि baseline AB. So AB is given. AB diameter is how much? Let's say AB is 2B. उसको हम कुछ नाम देते हैं small b. Is 1.276 into 10 raised to कितना बेटा? पावर 7 मीटर. चलो ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन इज दैट. क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. यानी कि एपी यानी कि कैपिटल डी दोनों. तो हमें फाइंड कर रहा है क्वेश्चन में एपी इज इक्वल टू कैपिटल डी को फाइंड करना है. चलो ठीक है. हेलो, ये क्या बेटा? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, वो हमें कंप्यूट करना है. एपी है, एपी बोले या फिर बीपी बोले, दोनों ही डी होगा. यस और नो? यस सर. ओके, नाउ वी हैव सिंपल फॉर्मूला. मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था. थीटा इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. यस और नो? यस सर. ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब एंगल रेडियन में हो तो. यस और नो? यस सर. इफ it is valid, it is valid only for if angle is in radian. ठीक है ना. ये एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए.
लेकिन देखो हमें जो एंगल दिया गया बेटा, वो एंगल ना तो रेडियन में है, वो एंगल है डिग्री एंड मिनट में, है ना? ओके, Yes. यस तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल वे। चलो तो ये थीटा हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 54 मिनट है तो मिनट को देखो पहले सेकंड में हो तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, मिनट हो तो फिर डिग्री में, और डिग्री फिर रेडियन में। ये सुनो, सीक्वेंस मैंने बताई ना आपको। Yes. तो यहाँ देखो मिनट और डिग्री दोनों है, तो हमें क्या करना होगा? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। यस और नो? यस सर तो हियर 1 डिग्री 54 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट प्लस 54 मिनट, यानी कि कितना हो जाता है? 114 मिनट। देखो मिनट में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा। यस और नो? Yes. अब मिनट को हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा? 114 डिवाइड बाय 60, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री। चलो हो गया, डिवाइड किया तो। हेलो, है ना? यस सर ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? बोलो, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना? डिग्री Yes, में तो sir. कन्वर्ट हो गया, देखो पूरा का पूरा डिग्री में मिल गया। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 114 डिवाइड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन। चलो ठीक है। Yes. सो थीटा इज इक्वल टू, चलो बताओ ये सारा कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना हो रहा है। चलो जल्दी से। वन वन फोर मल्टीप्लाई बाय पाई यानी कि 3.14 डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 180। चलो क्लियर? हेलो, So sir, answer is 0.0331444. वेट 0.03 0.31 31, 444. ओके इतना लिखते हैं, इतने 4 रेडियन। चलो ठीक है, यानी कि चलो 2 पॉइंट शिफ्ट होते हैं तो 3.31 इंटू 10⁻² रेडियन। चलो थीटा, चलो थीटा मिल गया बेटा रेडियन में। Yes, sir. अब थीटा रेडियन में, तो देखो हमारे पास यहाँ कंडीशन है, इफ इट इज वैलिड ओनली फॉर द एंगल इज इन रेडियन, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. ओके, सो फ्रॉम द फिगर ओके, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क यानी कि ए बी बाय रेडियस यानी कि एपी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, AP is equal to capital D, and we have to find out capital D. Yes or no? Yes. So capital D is equal to, उसको सब्जेक्ट कर दो तो हो जाएगा B by theta, and we have already given B. B is given, see, है ना? B तो दिया है देखो क्वेश्चन में, and theta we have obtained. So let's substitute all this value. B equal to 1.276 into 10⁻⁷ divided by theta is equal to 3.31 into 10⁻²। चलो बताओ कैपिटल डी कितना मिल रहा है? पावर कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ एंड 10⁻²।
माइनस यानी 10:9 और वो 1.276 डिवाइड बाय 3.31 कितना हो रहा है देखो 0.3854 0.3854 into 10⁹ yes or no it Yes. is in meter okay अब देखो एक पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाते हैं तो 3.85 yes or no Yes. Yes. तो देखो कैपिटल D इज 3.85 और 84 मिल गया फाइनल आंसर Yes, sir. है ना D इज इक्वल टू देखो कितना इजी है 2 मार्क्स में पूछा जाता है ठीक है फर्स्ट टाइम था इसलिए हमने इतनी देर लगाई स्लोली किया अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूं ले लिया स्क्रीनशॉट Yes. ओके अब देखो कि हमने ये जो सारी प्रोसेस की यहां से यहां तक ये जो प्रोसेस की थीटा की पूरी वो हम शॉर्टली भी कर सकते हैं कैसे तो पहले डिग्री और मिनट में था तो पहले उसको पूरा का पूरा हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया इस मिनट को डायरेक्ट हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं है ना डायरेक्टली अभी हमने अगला फर्स्ट सम देखा था देखो उसमें हमने किया था ऐसा डायरेक्ट मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए है ना देखो फर्स्ट यदि आपके पास बुक हो तो एक मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाए सो इट इज मल्टीप्लाई बाय 4.83 और 4.84 into 10⁻⁻⁶ yes or no हेलो Yes. है ना Yes, sir. मिनट को डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो करो तो आपको ये डायरेक्टली ये मिल जाता है और ये प्रोसेस यहाँ पे की हुई है देखो है ना लेकिन आपको ये डिजिट याद रखना पड़ेगा यदि आपको याद नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली मैंने जो बताया उस मेथड से आप शिफ्ट होते जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा चलो क्लियर Yes, sir. ओके तो इसलिए हमने इस तरह कन्वर्ट कर दिया कोई डाउट और देखो यहाँ पे बुक में जो कन्वर्ट किया हुआ है वो सेकंड में से कन्वर्ट किया हुआ है देखो पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया फिर सेकंड में से कन्वर्ट किया हम मिनट से भी डायरेक्ट कर सकते हैं ठीक है वैसा नहीं कि सेकंड में कन्वर्ट कर मिनट टू रेडियन तो उसके लिए 4.84 नहीं होगा और कुछ डिजिट होगा वो डायरेक्ट कर सकते हो आप क्लियर Yes. यस चलो क्लियर कर दो सब कुछ है ना Yes, sir. ओके चलो सो मैंने क्लियर कर दिया चलो इसके लिए एक हमने यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट किया इसके अलावा टेक्स्ट बुक में एक और सम है वो है देखो नाउ यू कैन सी क्वेश्चन दिखता होगा आपको दिखता है ना चलो अननेसेसरी पोर्शन को मैं फाइट कर देता हूं चलो नंबर 4 सी the sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds see okay 1 minute one call is there okay बेटा एंगुलर डायमीटर यानी कि एंगल जो मेजर करते हैं वो कितना हुआ बेटा 1920 सेकेंड यानी कि फ्रॉम द अर्थ
सन उनका डिस्टेंस हमें दिया है 1.496 into 10⁻11 मीटर. So what is the diameter of sun? Suppose this is the sun. Okay, let's use another place. Suppose this is the sun. Okay, and we are measuring from our earth. So this is E. This is the sun, A and B. And here, if we join lining between the earth and sun, see, this is sun, and this is the earth. Now what is given? The distance capital D of the sun from the earth. D is given. Okay, an angular angle, that is suppose this is the alpha. डायमीटर यूज करते तब हम अल्फा सिंबल यूज करते हैं, थीटा की जगह अल्फा यूज करते हैं, कोई उससे कुछ चेंज नहीं होता है. So what is the diameter of sun? So we should find out this distance, diameter. Let's say it is small d. ठीक है. So whatever the data is written, alpha is how much? 1920 सेकंड. चलो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट. रेडियन में. यस और नो? यस सर. सो 1920 सेकंड को आप डिवाइड करो 60 से तो आपको मिलेगा मिनट. फिर से डिवाइड करो 60 तो मिलेगा आपको डिग्री. एंड मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करो तो आपको मिलेगा रेडियन में. यस. चलो ठीक है. आप ये करो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि लेट्स यूज अनदर कलर. आइदर 120 और 9020 मल्टीप्लाई बाय 4.85 into 10⁻⁻6 सेकंड को डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए. तब को आपको जो आंसर मिलेगा बोथ द आंसर विल बी सेम. चलो ठीक है. चलो करो. कितना हो रहा है देखो. दोनों आंसर सेम होने चाहिए. जल्दी से. टन 1 मिनट. कितना हुआ सर? 1 मिनट कर रहा हूँ. सॉरी 1 मिनट सर. हाँ 1 मिनट. मुझे ऐसा लगा कि आंसर 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट तुम वेट के लिए बोल रहे हो. सर 0.00930. 0 पॉइंट कितने जीरो है? 20930. 930. कितना? यस सर. इतना रेडियन. यानी कि 9.3 into 10⁻⁻³ रेडियन. चलो ठीक है. आपने बताया, मुझे तो पता नहीं. और ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन की ऊपर कितना हो रहा है देखो. 9020 मल्टीप्लाई बाय 4.85 कितना हो रहा है? 9020 9312. सॉरी 931 into 10⁻⁻6 यानी कि 9.31. नो सर. नो सर. सॉरी 9312. ओके 9312 यानी कि ओके 1 मिनट. 9312 ओके यस सर. into 10⁻⁻6 यानी कि कितना हुआ? 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाओ. सो 9.31 into 10⁻³ रेडियन. देखो हो गया ना. देखो सेम आ गए यहाँ पे और यहाँ पे. यस सर. ओके. अब आपको तो पता है इक्वेशन कैसे यूज करना है. अल्फा इज इक्वल टू
small d by capital D. Yes or no? Yes sir. As we know. इसलिए हमने पूरा रेडियन में कन्वर्ट किया. अब हमें फाइंड क्या करना है? What is the diameter of sun? यानी कि small d फाइंड करना है. तो small d equal to d into alpha. D multiply by alpha. देखो, अब two things is given. Capital D is given 1.496 into 10 raised to 11 meter. देखो, it is given. Yes or no? And we have Yes, to sir. find out small d. वो फाइंड करना है. चलो, तो वैल्यू रख दो. Capital D equal to 1.496 into 10 raised to 11. ये डिस्टेंस याद रखना, बाद में मैं पूछने वाला हूँ. The distance between the earth and sun, the average distance. And we obtain theta 9.3 alpha into 10 raised to -3. कितना हो रहा है बताओ? पावर हो जाएगा 10 raised to 8. चलो जल्दी से. Yes sir. 1.496 into 9.3. 9.3. 14 point something मिलेगा शायद. 14 या 15. 13.91. Sorry? 13.91. 13.91. Yes. Okay, so nearly 1.4 into 10 raised to 9 meter. ठीक है? ठीक है ना बेटा? सर ये आप 1.4 कहाँ से लाए? 1.39 था ना? 13.9 तो एक पॉइंट शिफ्ट हो गए, तो नियरली 1.4 हो जाता है ना? यस यस. 1.39 है देखो, तो एक पॉइंट शिफ्ट हुआ तो पावर 10 raised to 9 हो गया. यस. एंड 1.39 मींस नियरली 1.4. देखो मैंने नियरली की साइन की हुई है ना? ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. यूनिट भी लिखना मीटर में. ओके, चलो इसको क्लियर कर दो. यस सर. ओके, अब देखो बुक में कितना आंसर दिया हुआ है. 1.39 into 10 raised to 9 है ना? वही आंसर. यस सर. ओके, सो लेट्स स्टॉप से रही है. तो देखो बेटा, इस तरह कोई भी सम्स हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो आप ऐसे सम सॉल्व करोगे अपने आप. और दे दो एक्स्ट्रा आपको 2-3. यस सर. सो लेट्स शेयर अ स्क्रीन विथ यू. आपको कुछ दिख रहा है बेटा? एक मिनट. हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा? यस और नो? यस सर. तो इसका सॉल्यूशन अपने आप कर देना. ठीक है? सॉल्यूशन का आंसर दिया हुआ है, वो आइदर मे बी रॉन्ग भी हो सकता है. ओके सर. ये अपने आप सॉल्व करना. सो लेट्स स्टॉप शेयर हियर. तो देखो बेटा, आज के लिए इतना, बस इतना सॉल्व करना. ठीक है? बाकी सब हम आके देखेंगे. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. आवाज नहीं आई मेरी? बाय सर. ओके, बाय.